Good morning students. I am BL Soni, PGT English, GPS School Gudda Gorji. Welcome back in this online class of English. Today we are going to learn a good topic. I can say that the best topic of grammar, short composition. It is the first topic of writing section. And short composition carries 4 marks in examination. Let's start. What is short composition? Our first topic of writing section. Our first topic of writing section is short composition. Our first topic of writing section is short composition. It carries 4 marks in board examination. Do you know very well that there will be 12 questions in your board examination, and the question number 3 will be short composition. Okay, I think that you have understood it very well that there will be 12 questions in your board examination, and question number 3 will be short composition. What is short composition? I can ask you, and somebody ask you, what is short composition? The first thing is here, what is definition of short composition? I want to clear, so listen and look this side carefully. So what is short composition? Short composition means write in brief. Short composition means write in brief. I want to tell everything now in Hindi. Listen. अपनी राइटिंग सेक्शन का पहला जो पार्ट है जिसका नाम है शॉर्ट कंपोजिशन, जिसको अपन लोग बोलते हैं लघु लेख. क्या बोलते हैं? लघु लेख. ये एग्जाम में 4 नंबर का आता है. क्वेश्चन नंबर 3 है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका शॉर्ट कंपोजिशन का. शॉर्ट कंपोजिशन मीन्स, शॉर्ट कंपोजिशन का मतलब है राइट इन ब्रीफ, संक्षेप में लिखना. देन लिसन कि आई कैन से दैट राइट इन अबाउट, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में लिखना, लगभग 50 शब्दों में लिखना. आई वॉन्ट टू टेल that there will be 2 questions of short composition. It's mean that short composition से related 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं. उनमें से आपको 1 प्रश्न परीक्षा में करना होता है. यानी ये कह सकता हूँ कि 1 out of 2 short compositions in 50 words. I can say that 1 out of 2 short compositions in 50 words. 2 short compositions में से 1 short composition करना कितने शब्दों में? 50 शब्दों में करना. तो I think that you have understood it. What is writing section and short composition? Then listen. Short composition mean write in brief. And there are 5 types of short composition. There are 5 types of short composition. There are 5 types of short composition. The first composition is here. Listen to advertisement.
The second, notice. The third, invitation. The fourth, poster. And fifth, argument. Okay, that's clear. Look, there are 5 types of short composition. The first, advertisement, notice, invitation, poster and argument. I want to tell that last year notice and invitation came in board examination in 2020. 2020 की परीक्षा में नोटिस और इनविटेशन परीक्षा में पूछे गए थे। 2019 की परीक्षा में आपसे पूछे गए थे एडवर्टीजमेंट और पोस्टर। 2019 की एग्ज़ाम में आपसे एडवर्टीजमेंट और पोस्टर पूछे गए, नोटिस और इनविटेशन आपसे पूछे गए 2020 की एग्ज़ाम में। 2018 की परीक्षा में ये दोनों पूछे गए थे। एडवर्टीजमेंट, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट क्या है? द फर्स्ट थिंग इज हियर, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? वी कॉल इट इन हिंदी विज्ञापन। I want to clear that advertisement is a display, या verbal description of the qualities of a product, job and service. It is designed to circulate in the print, electronic and other media. It must be simple and clear. Look this side. I wrote here the definition of advertisement. What is advertisement? Advertisement is a display, a verbal description of the qualities of a product, job, service. It is designed to circulate in the print, electronic and other media. It must be simple and clear. I want to clear in Hindi that what is the advertisement, and look this side and listen very carefully. Advertisement का मतलब क्या होता है? Advertisement का मतलब होता है विज्ञापन। और विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन कोई भी जो उत्पाद है, कोई नौकरी है या सेवा है, उनकी विशेषताओं का विवरण है। विज्ञापन क्या है? कोई भी उत्पाद, प्रोडक्ट, जॉब या सर्विस, नौकरी या सेवाओं की विशेषताओं का विवरण है जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या कोई अन्य माध्यम से प्रसारित किया जाता है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से प्रसारित किया जाता है। और यह क्या होना चाहिए? एकदम सिंपल और स्पष्ट होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? विज्ञापन का मतलब होता है प्रदर्शनी, यानी इलेक्ट्रॉनिक या अदर मीडिया से किसी भी वस्तु वगैरह के बारे में प्रचार प्रसार करना क्या कहलाता है? एडवर्टीजमेंट कहलाता
है। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी उत्पाद, जॉब या नौकरी जिसे बोलते हैं या सेवा है, उनकी विशेषताओं का विवरण होता है। तो ये आपके क्लियर हुआ कि एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज हेयर कि एडवर्टाइजमेंट के कितने प्रकार होते हैं। दूसरी बात यहां पे है कि एडवर्टाइजमेंट के कितने प्रकार होते हैं। तो लुक दिस साइड, आई कैन से दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के कितने प्रकार है? 2। कितने प्रकार है? 2। द फर्स्ट क्लासिफाइड एंड सेकेंड डिस्प्ले या जनरल एडवर्टीजमेंट। ओके, कि एडवर्टीजमेंट के कितने प्रकार हैं? आई टोल्ड यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, द फर्स्ट क्लासिफाइड एंड सेकेंड डिस्प्ले या जनरल एडवर्टीजमेंट। आपकी ये चीज समझ में आई? विज्ञापन किसे कहते हैं मैंने अभी आपको बताया विज्ञापन की डेफिनेशन दे करके कि विज्ञापन है उन उत्पाद, नौकरी या सेवाओं का, विशेषताओं का विवरण है जो किसी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से प्रसारित किया जाता है। ये स्पष्ट और सिंपल होना चाहिए। और विज्ञापन के 2 प्रकार है, एक है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और दूसरा है डिस्प्ले या जिसे बोलते हैं जनरल एडवर्टीजमेंट। अब पहली बात यहाँ पे आती है कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होता है। तो देखिए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग इज हेयर, तो व्हाट इज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। आई वांट टू क्लियर अबाउट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। लुक, इट इज ए स्मॉल एडवर्टीजमेंट। It is a small advertisement that put in a newspaper. If you want to buy या sell something and to get a job atrocity। कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होता है? क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है इट इज अ स्मॉल एडवर्टीजमेंट। ये एक लघु एडवर्टीजमेंट होता है दैट पुट इन ए न्यूज़पेपर, जो किस में डाला जाता है? समाचार पत्र में। इफ यू वांट टू बाय या सेल, यदि आप कोई चीज को बेचना चाहते हो या खरीदना चाहते हो, या टू गेट ए जॉब, या आप क्या करना चाहते हो? नौकरी प्राप्त करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? नौकरी प्राप्त करना चाहते हो। या मैं ये भी कह सकता हूं कि एम्प्लॉय समबडी, इसको, ठीक है, या अपन लोग कोई फ्लैट है उसको परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, उनसे संबंधित जितने भी जो विज्ञापन के कॉलम हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में आते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि इसे किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा न्यूज़पेपर में दिया जाता है, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा न्यूज़पेपर में दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी सेवा या जो वस्तु है, या फिर ये कहे कि सेवा का लाभ लेने के लिए या वस्तु को लोगों की नज़र तक पहुंचाने के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होते हैं, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए जाते हैं। ये नोटिस की तरह ही लिखे जाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं।
क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको पता चला कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं। अभी अपन लोग इनकी चर्चा करेंगे कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। आपके सामने लिखा हुआ है कि डिस्प्ले या जनरल एडवर्टीजमेंट, डिस्प्ले या जनरल एडवर्टीजमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि डिस्प्ले या जनरल एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, इसको मैं कह सकता हूं, आई कॉल इट इन हिंदी प्रदर्शन के लिए विज्ञापन, प्रदर्शन के लिए विज्ञापन। जितने भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है और अदर जितने भी मीडियाज हैं, उन मीडिया के माध्यम से यानी विनिर्माताओं के द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा किसी भी वस्तु की बिक्री या उसकी खरीद को करवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, उस हेतु डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बताया 3 प्रकार के हैं। एक है लोकल, दूसरा है रिटेल एंड तीसरा है नेशनल एडवर्टीजमेंट्स। यानी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट 3 प्रकार के होते हैं। लोकल एडवर्टीजमेंट जिसे बोला जाता है स्थानीय, क्या बोला जाता है, स्थानीय। रिटेल जिसे बोला जाता है थोक, खुदरा। और नेशनल एडवर्टीजमेंट्स जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय विज्ञापन। तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी कि अपन लोग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं और डिस्प्ले जनरल एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको आई डिड नॉट टेल यू अबाउट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट बट आई टोल्ड यू अबाउट डिस्प्ले जनरल एडवर्टीजमेंट्स एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट इट्स पार्ट्स। मैंने अभी इसके बारे में बताया और इसके पार्ट्स के बारे में भी अभी आपको बताया। नाउ वी विल स्टार्ट दैट व्हाट इज क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट एंड how many parts of classified advertisements. So look this side. First advertisement is here classified advertisement. I told you about classified advertisement that it is a small advertisement that put in a newspaper. If you want to sell or buy something and employ somebody and you want to purchase and sell flat, then we put this advertisement in newspaper and now we will discuss about its parts. अब हम इसके भाग के बारे में चर्चा करेंगे कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है वो इसके कितने कॉलम होते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, ये एक एडवर्टीजमेंट है और इस विज्ञापन में कॉलम दिए जाते हैं। मैं ये समझा देता हूँ हिंदी में कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में कॉलम दिए जाते हैं। जैसे कि आपके विद्यालय में अलग अलग कक्षाएं रहती है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। वो उसका जैसे कक्षा 12 है, ये मान के चलो कक्षा 12 है, वो है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ये है उसके कॉलम। ये क्या उसके कॉलम। अभी हमने चर्चा की क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की। वी वर टॉकिंग अबाउट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। I told you about classified advertisement that classified advertisement is a small advertisement that put in a newspaper if you want to sell or buy something and employ somebody. मैंने आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया था कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होता है। एक छोटा सा विज्ञापन होता है जिसको समाचार पत्र में कोई भी अपन सामान खरीदते हैं, बेचते हैं
या किसी को नौकरी पे अपने को रखना है, या फिर कोई अपने को नौकरी की तलाश है, या कोई फ्लैट वगैरह है उसको अपन सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में बनाए जाते हैं। यानी इनका जो संबंधित एडवर्टीजमेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉलम होते हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में आते हैं। अपन ने अभी हाल ही में पीछे चर्चा की थी, उसमें मैंने अभी आपको बताया भी था। आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट display and general advertisement. There are three kinds of display advertisement. The first, local, retail and national advertisement. Now we are going to talk about parts of classified advertisement. The first part is here matrimonial. यानी अब हम चर्चा करते हैं कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में कौन कौन से कॉलम आते हैं, उन कॉलम्स की अपन लोग बात करते हैं। पहला कॉलम आता है मैट्रिमोनियल्स, दूसरा कॉलम इसमें पूछा जाता है अकोमोडेशन, एंड थर्ड job vacancy, fourth sale and purchase, lost and found, educational, पहले अपन इनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे अपन लोग देखते हैं। तो मैट्रिमोनियल्स जो कॉलम होते हैं उसमें दो टाइटल अपन लोग बना सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर टू टाइटल्स इन मैट्रिमोनियल्स कॉलम। इसमें दो टाइटल्स अपन लोग काम में ले सकते हैं। मैट्रिमोनियल का मतलब है, वी कॉल इट इन हिंदी वैवाहिक विज्ञापन। इसको हिंदी में वैवाहिक विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। यानी मैट्रिमोनियल्स, इसमें अपन लोग यदि किसी भी दूल्हा या दुल्हन की तलाश में हैं अपने बड़े भाई या अपनी बड़ी बहन के लिए, तो उससे संबंधित विज्ञापन होता है वो मैट्रिमोनियल्स कॉलम में दिया जाता है, जिसके दो टाइटल बनते हैं। जैसे एक अपन लोग बना सकते हैं ब्राइड वांटेड, टाइटल बनता है ग्रूम वांटेड। अभी हम चर्चा करेंगे ब्राइड वांटेड एंड ग्रूम वांटेड, ये किस प्रकार से क्या अपन लोग इसमें लिखते हैं, क्या डिटेल इसमें लिखी जाती है, पूरी बात अभी चर्चा करेंगे। तो मैट्रिमोनियल्स जो कॉलम होता है उसमें दो टाइटल बनते हैं, ब्राइड वांटेड एंड ग्रूम वांटेड। इसे ब्राइड ग्रूम भी बोला जाता है। अकोमोडेशन, यानी अकोमोडेशन क्या है? मैं कह सकता हूं कि अकोमोडेशन इज ए नेम ऑफ प्लेस, इज ए नेम ऑफ प्लेस वेयर वी लिव एंड स्टे। अकोमोडेशन क्या है? कि एक स्थान का नाम है जहां अपन लोग रहते हैं या निवास करते हैं। यानी इसको हिंदी में कहा जाता है सुविधाएं। क्या कहा जाता है? सुविधाएं। जैसे बात करें सबसे पहले अपन लोग, जैसे आ गया टू लेट, टाइटल मस्ट बी राइट इन कैपिटल लेटर्स। दूसरा अकोमोडेशन, वांटेड। अकोमोडेशन जो कॉलम होता है इसमें भी दो टाइटल बनते हैं, एक टू लेट का, एक अकोमोडेशन वांटेड का। एंड नाउ यू विल आस्क मी, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू लेट एंड अकोमोडेशन वांटेड? आई क्लियर दीज थिंग्स, लुक दिस साइड। टू लेट का मतलब होता है कि टू गिव
ऑन रेंट, टू गिव ऑन रेंट, यानी आपके पास कोई भी मकान, कोई आपके पास कमरा, या कोई आपके पास दुकान, कोई फैक्ट्री या कोई शोरूम, यदि आप किसी भी व्यक्ति विशेष को किराए पर दे रहे हो तो उनसे रिलेटेड जो विज्ञापन होता है वो टू लेट टाइटल है। टू लेट टाइटल के माध्यम से अकोमोडेशन कॉलम में बनता है। अब अकोमोडेशन वांटेड क्या है? इसका मतलब होता है कि टू गेट ऑन रेंट, यदि आपको खुद को कोई मकान, दुकान, शोरूम, यदि इनकी खुद को ज़रूरत होती है किराए के ऊपर, तो वो जो टाइटल है वो बनता है अकोमोडेशन वांटेड के नाम से। तो ये क्लियर है कि मैट्रिमोनियल्स है उसमें दो टाइटल बनते हैं, एक वर और एक वधू के लिए। वर चाहिए उसका अलग टाइटल, वधू चाहिए उसका अलग टाइटल। अकोमोडेशन है उसके भी दो टाइटल बनते हैं, टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेना, कई बार विद्यार्थी गलत करते हैं कि टू लेट एंड अकोमोडेशन में वो गलती कर बैठते हैं। तो इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि टू लेट होता है किराए पर दिया जाता है, और अकोमोडेशन वांटेड का मतलब होता है किराए पर लिया जाता है। फिर आता है जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी भी स्थान विशेष के ऊपर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश के लिए विज्ञापन देता है, या किसी भी संस्था या इंस्टीट्यूट को किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है, तो उनसे रिलेटेड जो विज्ञापन न्यूज़पेपर वगैरह में दिए जाते हैं वो होते हैं जॉब वैकेंसी से संबंधित। वो किससे संबंधित होते हैं? जॉब वैकेंसी से संबंधित होते हैं। तो इसके भी दो टाइटल बनते हैं। इसके भी कितने टाइटल बनते हैं? दो टाइटल बनते हैं। देखना ज़रा, एक बनता है सिचुएशन वैकेंट, और एक बनता है सिचुएशन वांटेड। एक बनता है सिचुएशन वैकेंट और दूसरा बनता है सिचुएशन वांटेड। वांटेड टाइटल में टू गेट ए जॉब, इसमें यानी अपने को नौकरी पाने के लिए टू गेट ए जॉब, और इसमें टू अपॉइंट समबडी। मतलब क्या है कि सिचुएशन वैकेंट जो टाइटल है उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को अपॉइंट किया जाता है, और सिचुएशन वांटेड में अपने को खुद को नौकरी की तलाश होती है। अभी इनकी चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से क्या बनता है, अभी देखिए। फिर आता है सेल एंड परचेज। क्या आता है? सेल एंड परचेज। यहाँ पे सेल और परचेज की बात करें तो बेटा सेल और परचेज का मतलब है कि आपको, यदि आप कोई भी मकान या कोई दुकान या फिर कोई भी गाड़ी आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो उनसे संबंधित जो विज्ञापन बनते हैं वो बनते हैं सेल एंड परचेज में। किस में बनते हैं? सेल एंड परचेज में। जैसे आपको बता दूं, जैसे मान लो कि आप कोई घर बेच रहे हो, तो इसके लिए जैसे ये बनता है, मैं ये कह दूं कि प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड प्रॉपर्टी टू परचेज। आप पे कोई भी प्रॉपर्टी, आपकी कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, और कोई भी प्रॉपर्टी है उसको आप क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो कॉलम काम में लिया जाता है न्यूज़पेपर में, वो कॉलम होता है सेल एंड परचेज कॉलम, और उसका टाइटल होता है प्रॉपर्टी फॉर सेल, प्रॉपर्टी टू परचेज। अब आप कहोगे सर मान लो हमें प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, नहीं खरीदनी है, हमें तो कोई गाड़ी बेचनी है, वो खरीदनी है, तो उसके लिए तो डोंट वरी बी हैप्पी, सीधी सी बात है। जैसे मान लो आप गाड़ी बेच रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, व्हीकल्स फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल, राइट दिस टाइटल इन कैपिटल लेटर्स। ओके, ये टाइटल भी किस में लिखना आपको, कैपिटल लेटर में लिखना है, व्हीकल्स फॉर सेल। तो अपन ने चर्चा की अभी कि मैट्रिमोनियल्स है, उसके दो टाइटल बनते हैं, ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड। चर्चा करेंगे, अभी एक एक का अध्ययन करेंगे। आप लोग पहले समझते जी इनके टाइटल कौन कौन से बनते हैं। अकोमोडेशन है, जिसका मतलब होता है सुविधा, और इसका मतलब है कि एक ऐसा स्थान जहां अपन निवास कर रहे होते हैं या अपन वहां पे रह रहे होते हैं। इसके भी दो कॉलम बनते हैं, एक बनता है टू लेट और एक बनता है अकोमोडेशन वांटेड के नाम से। टू लेट में किराए पर दिया जाता है कोई मकान घर दुकान, और अकोमोडेशन में कोई मकान घर दुकान किराए पर ली जाती है। जॉब वैकेंसी, इसके भी दो टाइटल बनते हैं, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड के नाम से। सिचुएशन वैकेंट में टू अपॉइंट समबडी, किसी व्यक्ति विशेष को क्या करना, अपॉइंट करना, और सिचुएशन वांटेड में टू गेट ए जॉब, आपको खुद को नौकरी की तलाश होती है। फिर आता है सेल एंड परचेज, जिसमें प्रॉपर्टी फॉर सेल और प्रॉपर्टी टू परचेज के नाम से आपको टाइटल बनाने होते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड, यानी इसमें क्या होता है कि जब व्हेन यू हैव लॉस्ट या फाउंड समथिंग, यानी जब आपने कोई चीज खो दी है या कोई चीज आपको मिली है, देन वी पुट this type of advertisement in a newspaper. Okay, when you have lost something then we put this type of advertisement in newspaper. जब अपन लोग कोई चीज को कोई चीज अपने खो दी है या कोई चीज अपने को मिली है, तो इस प्रकार के विज्ञापन है वो समाचार पत्र में दिए जाते हैं। उनका जो टाइटल है केवल इतना ही बनता है, लॉस्ट एंड फाउंड। क्या बनता है, लॉस्ट एंड फाउंड के नाम से टाइटल बनता है। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से आपके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, एजुकेशनल, एजुकेशनल को कहते हैं शैक्षणिक। क्या कहते हैं, शैक्षणिक। यानी एजुकेशनल में टू टेक एन एडमिशन इन स्कूल, कॉलेज एंड कोचिंग्स। अभी मैंने आपको यहाँ पे 6 कॉलम अच्छे से आपको समझाएं, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे के इनके कॉलम की चर्चा करते हैं। लुक दिस साइड। फिर आता है 7 नंबर का, चेंज ऑफ नेम। मिसिंग पर्सन, नील, यानी आपको करना क्या है कि चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम जो एडवर्टीजमेंट होता है, चेंज ऑफ नेम जो एडवर्टीजमेंट होता है, इस प्रकार के कॉलम में यदि आप अपना नाम है चेंज करवा रहे हो, इसमें आप अपना नाम चेंज करवा रहे हो, तो नाम चेंज करवाने से संबंधित जो विज्ञापन है वह चेंज ऑफ नेम कॉलम में दिया जाता है। मिसिंग पर्सन, मिसिंग पर्सन में क्या होता है कि गुमशुदा, गुमशुदा की तलाश के नाम से आप लोग कोई बहुत सारे एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में देखते हो। कोई व्यक्ति विशेष कहीं खो गया होता है, गुम हो गया होता है, उसकी तलाश से संबंधित विज्ञापन है मिसिंग पर्सन में दिए जाते हैं। और लास्ट है नील, जिसका मतलब होता है टू सेल डॉग्स। क्या होता है, टू सेल डॉग्स, यानी जो कुत्ते वगैरह होते हैं इनको बेचने के लिए, कुत्ते वगैरह होते हैं इनको बेचने के लिए इनसे संबंधित जो विज्ञापन होते हैं वो दिए जाते हैं, नील कॉलम में दिए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी मैंने आपको यहाँ पे जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है उसके मैंने आपको कॉलम्स बताए, वो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट
से संबंधित जितने भी एडवर्टीजमेंट उनकी चर्चा अपन लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर इट।